Quarterfinal number 4 coming up. Delhi taking on Vidarbha. Vidarbha winning the toss and opting to field. Delhi, Anuj Rawat, Yash Dhul, Ayush Badoni, very well-rounded side. Himmat Singh, they bat deep over there. The all-rounders, Lalit Yadav, and Vidarbha being led by Atharva Taide, Jitesh Sharma, who is making waves, especially in the shorter formats. Karun Nair turning out for Vidarbha, earliest to play for Karnataka. Priyansh Arya opening the batting, 214 runs. Anuj Rawat, very experienced. Umesh Yadav, look at that, 189 wickets in his T20 career. आते ही शुरुआत हुई है, मिड विकेट पर ये बाउंड्री मिलेगी. Well, that's played beautifully behind that one and drives it exquisitely through extra cover. Darshan once again working up a good pace, but width offered, and that's once again disappeared. फिर से ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया शॉट. The hard-working Umesh Yadav gets his just reward. Really fired it in over there. And Umesh Yadav showing what experience is all about. Priyansh Arya bowled by Umesh for 21. Wicket falling, the first one at 25. यश धुल कप्तान दिल्ली के, 17 पारियों 538 रन है, 73 से 4 अर्धशतक हैं. And this time it's between the gap. That will run away, 4 runs. And once again, beautifully played there. Oh, what a shot this one. Full of confidence. Width offer, driven handsomely this time. And finds his way to the fence once again. इस बार गेंद शॉट थी, पीछे हटे, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और बड़ा शॉट. That ball up in the air and the fielder has to leap. Too much to get to that one. And the ball goes over the fence for 6 runs. Shot. And there goes the ball. And over the fence. फिर तेजुल आगे निकले और फिर से लगभग उसी अंदाज में. This time it's short enough and that's pulled. And that's a very good shot there. पहली गेंद पर एक चपत शानदार, फील्डर ने पूरी कोशिश कर ली, भरसक कोशिश कर ली. फिर से एक बार क्रीज के अंदर उन्होंने थोड़ी सी बैक फुट पर मूवमेंट ली और गेंद को सीधा मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया 4 रन के लिए. Once again, width offered outside the off stump. अनुज रावत ने अपना अर्धशतक बना लिया है. और एक बात तो है कि जिस अंदाज से उन्होंने बनाया है, क्या अदा थी उनकी. कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं, कहीं कोई समझौता नहीं. ये लीजिए, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे देखते हैं होता है कैच या नहीं. हो छूट गया. ऐसा लगा कि बहुत समय था उनके पास नीचे आने के गेंद का, लेकिन अंतिम समय मेरे ख्याल इन दोनों के बीच में थोड़ी सी असमंजस की एक स्थिति आ गई थी कि कौन कैच लेगा. ये लीजिए, एक और दमदार शॉट, खिलाड़ी नीचे, इस बार हाथ में. यश धुल को चलता किया 43 के स्कोर पर और बिल्कुल नलकंडे ने गेंद को ऐसे हवा में ऐसी जगह पर जाकर पकड़ी गेंद को कि ऐसा लग रहा था कि अगर छूट जाती तो ये छक्का चला जाता. 43 he got by Darshan of Dipesh. 43 of 29, 130 for 2. Fairly experienced, 634 runs. 36 innings thus far. This time not very intended, but we'll get a boundary. Umesh Yadav greeted. Oh, that would have been an excellent catch had he been able to hang on to that one. An inside out shot. Almost reached there but couldn't quite hang on to it. इस बार फिल्टर नीचे है, इस बार नहीं छोड़ेंगे. लो फुल टॉस था. अनुज रावत 68 रन बनाकर आउट हुए.
दिल्ली 141 3 विकेट पर। 38 मैच 702 रन है, 3 अर्धशतक, अच्छा खासा स्ट्राइक रेट है 129 का। Well, this time he'll bisect the two fielders. Beautifully played there. 4 runs. फिर से उसी एरिया में डीप में फील्डर हैं, और फील्डर हैं तो कैच भी है। ऑफ स्टंप के उसी एरिया में जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था वहां पर गेंद कर रहे हैं। देखिए आगे डिप होती हुई गेंद थी, इसको अच्छा कैच पकड़ा। हिम्मत आउट हुए 3 रन बनाकर 151 4 विकेट पर। Lalit Yadav, the experienced all-rounder. Thereabouts a full toss. Was it more than waist high? And it's disappeared. फिर से बड़ा शॉट मारा है, और दर्शक दीर्घा में एक बार फिर से गेंद है ये, और इस बार फायदा मिला है ललित यादव को। इस बार नहीं होगा, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन एज लगा। थर्ड मैन पर आसान सा कैच, उमेश यादव को मिलने वाली तीसरी सफलता। मारना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर, बदोनी टॉप एज लगा और एक अच्छा कैच। आयुष बदोनी 17 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट, 176 5 विकेट पर। Dev Lakra. Umesh has really bowled well to restrict and really what an end. Just going for that Yorker length, and that's the end. So while at one stage they were looking at a score in the vicinity of 200 or thereabouts, Vidarbha has done well to restrict Delhi to 176 for 6. 20 ओवर में 176 रन 6 विकेट के नुकसान पे बने हैं। So the target for Vidarbha 177 runs to get. अथर्वा 44 मैच 1200 रन 5 अर्धशतक 97 उनका सर्वश्रेष्ठ है, शतक बनाने से रह गए। ध्रुव शोरे पिछले साल तक दिल्ली के लिए खेले हैं, 1021 रन है, 8 अर्धशतक है, 84 सर्वश्रेष्ठ है। प्रदीप सांगवान 101 मैच 103 विकेट, 3 विकेट 13 रन देकर। ये गेंद थोड़ा सा स्विंग हुआ ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकल गया, और जो क्लियर लक्ष्य है उसी तरह बिल्कुल क्लियर शॉट मारा है ये। On the other hand, once again look at that, a quick run, Yashdul. Moment they seize the opportunity, angling it across the right hander, and that's beaten the fielder there. लीजिए थोड़ा सा वेट मिली थी, पीछे गए और फिर से एक बहुत बढ़िया टाइमिंग। Oh, this is not quite in control over there. Two fielders, the wicket keeper calling it's mine, and does well to hang on to that one. So Delhi effect a breakthrough. Went for that one, caught Banuj off for Yadav for 9, 17 for 1. करुण आ रहे हैं, 142 मैच है, 3199 रन। एक बार फिर से करुण नायर के बल्ले से देखने को मिली टाइमिंग। थोड़ा सा शॉर्ट था गेंद, बहुत ही जल्दी अपने को पोजीशन किया, और ये मैच का पहला छक्का। Oh, that could be close. Yes. And ruling in favor. That's the second wicket down. Karun Nair out for 8, leg before to Saini. And Vidarbha 34 for 2. इम्पैक्ट प्लेयर का इशारा होता हुआ अंपायर का। अक्षय वाडकर 26 मैच 562 रन है, 2 अर्धशतक उनके नाम है। शॉर्ट गेंद था, आते ही मौका मिला, और इस बार ऑफ स्टंप के ऊपर फिर से गैप में है गेंद। पीछे फील्डर है, क्या ये दूसरी बाउंड्री आ जाएगी? जी हाँ। Goes into a power play.
Because, oh, he's got him! Goodness me! Cotton bowled. Check shot played. And the way the bowler took the catch, I must say, that is quite enterprising. अक्षय को मारकर 8 रन बनाकर आउट, 56 3 विकेट पर। Jitesh Sharma, 92nd innings, 2,196 runs. Oh, this time outside the leg stump is gone. The umpire's lifted his finger. A very, very faint touch, I believe. And that wicketkeeper vehemently appealed. And instantly the umpire, Sai Darshan, just lifted up his finger. And wicket number 4 goes. अथर्वा 29 रन बनाए, 65 4 विकेट पे विदर्भा। 19 innings, 441 runs. Strike rate obviously 147. हिम्मत के साथ गेंद को खेल दिया इस बार, आखिरकार एक बाउंड्री आ ही गई स्कोर बोर्ड पर 27 गेंदों के इंतजार के बाद। ओ, स्टंप आउट हो गए। इसी का इंतजार था, वो आगे बढ़कर बैट्समैन को प्रलोभित कर रहे थे खेलने के लिए और इस बार वो फंस गए झांसे में और गेंद की लाइन से हटकर खेले। गेंद जाके विकेट कीपर के ग्लव्स में और बाकी काम किया अनुज रावत ने। इस तरह से 5वें विकेट का पतन। Jitesh Sharma gone for 12. Vidarbha 75 for 5. अक्षय कार्नेवार जो कि दोनों हाथों से गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाज के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं। 47 इनिंग्स में 509 रन। Full toss. Oh, he's taken it. 100 शॉट और इससे पहले कि हाथों में गेंद होती कदम बाहर रखते उन्होंने गेंद को उछाल दिया था। अक्षय कार्नेवार, कॉट लाकरा, बोल बदोनी 7-5 गेंदों पर। Darshan Nalkande. Well, a boundary there. He's bowled well. I was about to say he's not quite been amongst the wickets, but there it is, cleaned up there. That one, the one which came in, maybe trying to hit it with the tide, but completely missed the line. Darshan Nalkande goes for 8 and Vidarbha are trouble. 103 for 7. हर्ष आए नए बल्लेबाज, हर्ष दुबे। ये भी गेंद हवा में है और लगता है ये हवा में बाहर चली जाएगी। Oh, that's a cheeky shot, but ending in the hands of the fielder. Every time one feels that maybe semblance of a fight being put up. Harsh Dubey goes for 1. Kotsangwan bowl Yadav. And Vidarbha 114 for 8. ज्यादा बल्लेबाजी का अनुभव नहीं है, गेंदबाजी जरूर आज उन्होंने अच्छी की थी। टॉप एज लगाया, फील्डर नीचे है, मिलेगी सफलता। सांगवान को ये सफलता मिली है। विकेट नंबर 9। उमेश यादव आउट होकर जाते हुए बड़ा शॉट मारना चाहते थे, एज लगा, बाकी का काम किया फील्डर ने। The experienced Umesh Yadav bowled brilliantly, out for 1 and Vidarbha 117 for 9. दीपेश आरवानी। Oh, that wasn't too far, but gets a boundary here. Well, this time going down, fighting over here, Shubham Dubey. फिर से बड़ा शॉट खेला है और एक और बाउंड्री आएगी। फिर से सीधे बल्ले से खेला, आखिरी गेंद पर रन ले जरूर लिया। 137 9 विकेट पर। और इस तरह कह सकते हैं कि दिल्ली ने 39 रन से इस मुकाबले को जीता है। बड़ी जीत है, आसान जीत है। And this is how it all panned out. Anuj Rawat and Yash Dul leading the way for Delhi. भाई क्वार्टर फाइनल का तगड़ा मुकाबला हुआ था और मैच था 131 का मैच। अगर हम बात करें तो भाई वो मैच दिल्ली 39 यानी कि 39 रन से जीत जाती है।
तो आखिरकार हुआ क्या था, चले हम वो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले टॉस तो विदर्भ जीत जाती है और पहले फील्डिंग करने का यानी कि बॉलिंग करने का डिसाइड करते हो। स्टेडियम की बात करें तो महाराजा युद्धवीर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था और अगर बात करें तो ये मुकाबला बहुत ही तगड़ा हुआ था। तो आखिरकार मुकाबले में क्या हुआ था, चले हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। और अगर चैनल को वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं तो दिल्ली जब आती है बैटिंग करने के लिए तो भाई प्रियांश आर्या 21 रन बना पाते और उमेश यादव के हाथों बोल्ड हो जाते। उसके बाद बात करें तो भाई एक्स आरसीबीएन यानी कि भाई अनुज रावत की एक तगड़ी पारी आती है 68 रन की, जो एक तगड़े पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देता है। उसके बाद बात करें तो भाई यश धुल का एक कैमियो भी आता है 43 रनों का सिर्फ 29 बॉलों में और 3 छक्के उसमें भी थे और 3 छक्के अनुज रावत ने भी मारे थे। और अगर बात करें तो 43 रन की एक बेहतरीन पारी खेलते हैं यश धुल। उसके बाद बात करें तो आयुष बदोनी भी एक अच्छा कैमियो खेल कर जाते हैं 28 रनों का सिर्फ 17 बॉलों पे। उसके बाद सारे प्लेयरों ने थोड़ा थोड़ा मिलकर कॉन्ट्रीब्यूशन किया, लेकिन भाई इस मैच में अगर तगड़ी बॉलिंग की है तो वो की है उमेश यादव ने। भाई अगर उनकी बॉलिंग की बात करें तो सारे प्लेयर यानी कि सारे बॉलर की इकोनॉमी बहुत ही हाई थी, लेकिन भाई एक छोर से सिर्फ 7.75 की इकोनॉमी के साथ बंदे ने 4 विकेट चटकाए और जो लास्ट में डी लेकरा का विकेट चटकाया भाई हिट विकेट करके। भाई बंदा रन के लिए दौड़ा लेकिन फिर उसे पता चला कि मैं तो हिट विकेट हो गया। उसके बाद बात करें तो भाई उमेश यादव ने 4 विकेट लिए थे, दर्शन नालकंडे ने 1 विकेट लिया था, डी पारवानी ने 1 विकेट लिया था। उसके बाद सारे बॉलर की इकोनॉमी देखने लायक तो थी नहीं, क्योंकि अगर बात करें तो भाई दर्शन नालकंडे की इकोनॉमी अच्छी थी। उसके बाद बात करें तो भाई उमेश यादव की, इन दोनों की इकोनॉमी अच्छी थी। बाकी प्लेयरों तो पता नहीं क्या कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उमेश यादव ने जो लास्ट में बोल्ड करके हिट विकेट किया भाई लिटरली अमेजिंग था। तो चले देखते हैं आखिरकार क्या हुआ था जब दिल्ली डिफेंड करने के लिए उतरी। दिल्ली जब डिफेंड करने के लिए उतरी तो अथर्व टाइडे और डी शौरी के बीच अच्छी यानी कि ध्रुव शौरी के बीच अच्छी पार्टनरशिप होने लगती थी, लेकिन भाई वहां पर थोड़ा सा खलल डालने के लिए आ गए मयंक यादव। जी हाँ, मैं उन्हीं मयंक यादव की बात कर रहे हूँ जिनका नाम शोएब अख्तर ने भी लिया था और बहुत ही बड़े बड़े जिनकी रफ्तार तेज थी उन्होंने उस बंदे का नाम लिया था यानी कि मयंक यादव। अगर बात करें तो भाई डी शौरी यानी कि ध्रुव शौरी का विकेट चटका लेते हैं मयंक यादव। उसके बाद बात करें तो अथर्व टाइडे 29 बॉलों में सिर्फ और सिर्फ 28 रन बना पाते। उसके बाद बात करें तो करुण नायर भी अच्छा नहीं खेल पाते, नवदीप सैनी उनका विकेट ले लेते और वो भी 5 बॉल खेलते लेकिन 8 रन बना पाते। उसके बाद बात करें तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप पर आते ये वाजकर, लेकिन वो भी कुछ उतना खास उखाड़ नहीं पाते। अगर बात करें तो ललित यादव जो भाई कैच पकड़ते वो एकदम औसम था। उसके बाद बात करें तो भाई जितेश शर्मा जिनको 12 या 14 करोड़ में आरसीबी ने खरीदा है, मतलब कि उस बंदे ने भी उतना कुछ खास उखाड़ नहीं पाया था, लेकिन भाई शुभमन दुबे ने एक अच्छी तगड़ी पारी खेली थी। और उसके बाद बात करें तो एच दुबे, उमेश यादव, मतलब कि किसी का भी बल्ला हल्ला नहीं मचा सकता था। और उसके बाद बात करें तो भाई दिल्ली 176 रन बना पाती है और जब डिफेंड के लिए दिल्ली आती है तो 137 पर पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट कर देते। और सच में भाई जब पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट बचता था आदित्य शारवते का, लेकिन वो भी कुछ आधी उनकी तो बैटिंग नहीं आई क्योंकि भाई बॉल पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए थे। और अगर विकेट की बात करें कि किस ने विकेट ले लिया था उससे पहले बात करते तो भाई दिल्ली 176 6 विकेट के नुकसान पर बनाती है और भाई डिफेंड भी कर लेते, मतलब कि 39 रहते ये मुकाबला दिल्ली जीत भी जाती। और अगर इस मुकाबले की बात करें तो भाई ये जो मुकाबला हुआ था वो हुआ था 2023 में। अब काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि ये हाईलाइट कब किया, तो भाई अगर पूरा वीडियो देखा होगा तभी पता चलेगा। तो मैं अगर हाईलाइट की बात करूं तो ये हाईलाइट थी 2023 की, मतलब भाई ये 1 साल पुराना हाईलाइट है। और अगर हम बात करें कि किसने विकेट चटकाई थी तो भाई पी संघवन ने 1 विकेट चटकाया था, नवदीप सैनी ने 1 विकेट चटकाया था, मयंक यादव जिनकी पेस की हम सारे लोग बात करते जिनकी इकोनॉमी भी बहुत ही अच्छी थी उन्होंने 2 विकेट चटकाए। उसके बाद श्रेयांश शर्मा ने 1 विकेट चटकाया, ललित यादव ने 2 विकेट चटकाए, मतलब कि भाई जितने भी बॉलर थे दिल्ली के सबने भाई 1-1 या फिर 2-2 विकेट चटकाए। आयुष बदोनी ने भी भाई 1 विकेट चटकाया था, मतलब कि ये मुकाबला तो टक्कर का हुआ था, लेकिन आखिरकार ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल का दिल्ली जीत भी जाती है। आई होप आपको पता चलेगा क्या विदर्भ और बड़ौदा के बीच जो कल मुकाबला होने वाला है कौन सी टीम ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल का निकाल लेगी। आप मुझे कमेंट्स करके बताना भूलेगा नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।